Hello friends, exercise number 1.3, question number 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and minus 2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. So here questions में दिया गया है कि 10 questions टेस्ट में है, उसमें से अगर करेक्ट आंसर देते हो तो 5 मार्क्स मिलता है, इनकरेक्ट आंसर देते हो तो -2 मार्क्स मिलता है, अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करते हो तो 0 मार्क्स मिलता है. सो लेट्स बी सॉल्विंग. मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 incorrect answer. What is his score? So let's be solve. So here is the solution. Mohan gets marks for 4 correct questions. We know that each correct questions has 5 marks and here Mohan gets 4 correct questions. So 4 into 5, that is 20. He gets marks for 6 incorrect questions. Each incorrect questions has -2 marks. And Mohan has 6 incorrect questions, so he has 6 into -2, that is -12 mark for incorrect questions. Therefore, the total score of Mohan 20 minus 12, that is 8. Thus, Mohan gets 8 marks in a class test. Now, second question, Resma gets 5 correct answer and 5 incorrect answer. So what is her score? So let's say solve it. Resma gets marks for 5 correct questions, that is 5 into 5, because एक correct questions के 5 marks हैं, so 5 correct questions के 5 into 5, that is 25 marks. She gets marks for 5 incorrect questions. एक incorrect questions के marks से -2, so 5 incorrect questions के marks होंगे 5 into -2, that is -10. Therefore total score of Resma is 25 plus -10. So we can subtract it. 25 minus 10, that is 15. So thus Resma gets 15 marks in class test. Now question number 3. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answer out of 7 questions. She attempts. What is her score? So let's solve it. Hina gets marks for 2 correct questions, that is 2 into 5, that is 10 marks. She gets marks for 5 incorrect questions, that is 5 into -2, that is -10. And उसने सिर्फ 7 ही questions attempt किया है. Okay? So बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, पर अटेम्प्ट क्वेश्चंस नहीं करने के मार्क्स 0 है, तो उनका कोई कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है. सो देयरफॉर द टोटल स्कोर ऑफ हिना 10 plus -10, that is 0. Thus Hina gets 0 marks in a class test. Now question number 8. A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement salt and a loss of ₹5 per bag of grey cement salt. एक सीमेंट की कंपनी है, अगर वो व्हाइट सीमेंट सॉल्ट करती है, बेचती है, तो 8 रुपी पर बैग प्रॉफिट करती है, एंड ग्रे सीमेंट सॉल्ट कर रही है, बेच रही है, तो उसमें उनको 5 रुपीज का लॉस जा रहा है. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. What is its profit or loss? So let's try to solve first question. Given profit of 1 bag of white cement, that is ₹8, and loss of 1 bag of grey cement, that is ₹5. So first we have to find total profit and total loss. Okay. So total profit on selling 3000 bags of white cement. So we have to multiply 3000 with 8 rupees. Okay. So total profit of white 3000 bags, that is 24,000 rupees, and loss of selling 5000 bags of grey cement. So उनको 5 rupees से multiply करना होगा. So 5000 into 5, that is 25,000 rupees total loss. Okay. So here since profit is less than loss, so therefore his total loss, profit से loss ज़्यादा है. So his total loss on selling the grey cement bags
इज इक्वल टू लॉस माइनस प्रॉफिट। सो लॉस यहाँ पे 25,000 है एंड प्रॉफिट 24,000 है, तो टोटल लॉस कितना होगा, 1,000 रुपीज का लॉस होगा। सो thus he has lost of rupees 1,000 on selling the grey cement bags. Okay, now question number 2. What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags? क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि उनको व्हाइट सीमेंट बैग कितने सेल करने चाहिए ताकि उन्होंने जितना लॉस 6,400 ग्रे बैग्स सेल करके जितना लॉस किया है उनका इक्वल टू प्रॉफिट मिले, इसके लिए कितने व्हाइट सीमेंट बैग उनको बेचने चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बी सॉलिड, लेट्स बी सपोज द नंबर ऑफ बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट बी x। चलो हम मान लेते हैं कि x बैग हम सेल कर रहे हैं व्हाइट सीमेंट के ताकि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो सके हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट क्या है, दोनों इक्वल होना चाहिए, इतने हमको व्हाइट सीमेंट बैग बेचने हैं ताकि लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल हो जाए। सो पहले लॉस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रे सीमेंट बैग कितने हमने सेल किए हैं, वी सेल 6,400 सेल ग्रे सीमेंट बैग एंड एक बैग का लॉस 5 रुपीज है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 6,400 ग्रे सीमेंट बैग टू गेट टोटल लॉस। यहाँ पे हमने x व्हाइट सीमेंट बैग सेल किए हैं, सो x को मल्टीप्लाई करने होंगे 8 रुपीज से, क्योंकि 8 रुपीज एक व्हाइट सीमेंट बैग का प्रॉफिट है। सो इफ वी मल्टीप्लाई विथ x सीमेंट बैग देन वी गेट टोटल प्रॉफिट एंड यहाँ पे इक्वल टू के साइन की है क्योंकि डेटा में दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव 5 into 6,400 इज इक्वल टू x into 8। नाउ हमको 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो सामने जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड x व्हाइट सीमेंट बैग। ओके, सो 5 into 6,400 डिवाइडेड बाय 8। इफ वी सॉल्व इट देन वी विल गेट आंसर 4,000 bags। सो thus he must sell 4,000 white cement bags to have neither profit nor loss. Okay, let's move further. Question number 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. Okay, यहाँ पे हमको blank fill करनी है, यहाँ पे आंसर ट्रू हो इस तरह। So first question is -3 into blank is equal to 27। -3 को हम कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो पहले हम साइन नहीं देखते हैं, पहले हम सिर्फ 3 देखते हैं। ठीक है, तो 3 को यहाँ कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। सो 3 9 जा 27, तो 27 आ गया, पर यहाँ पे माइनस साइन है, सो यहाँ पे प्लस साइन लाइन होगी तो दूसरा नंबर कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। सो माइनस माइनस प्लस, सो -3 into -9 इट इज इक्वल टू +27। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 5 into blank इज इक्वल टू -35। सो पहले 35 आंसर ले आते हैं। ठीक है, सो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, दैट इज 5 7 जा 35। नाउ वी वांट माइनस आंसर, सो यहाँ पे प्लस आंसर है तो यहाँ पे कौन सी साइन रखेंगे तो माइनस आंसर आएगा। सो प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पे माइनस साइन रखनी होगी। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इंटू -8 इज इक्वल टू -56। तो पहले 56 ले आते हैं। सो 8 को कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। सो दैट इज 7 8 जा 56। सो 7 8 जा 56, यहाँ पे माइनस साइन चाहिए, सो यहाँ पे प्लस ही रखेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, सो यहाँ पे प्लस ही 7 को रखना है। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस साइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ब्लैंक इंटू -12 इज इक्वल टू 132। सो 132 को 132 लाना है 12 से। अगर हमको डायरेक्ट नहीं आता है 132 कैसे किससे मल्टीप्लाई करके आएंगे तो पहले क्या कर डालना है, 132 को 12 से डिवाइड कर देना है और जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो आंसर 11 आएगा। सो 11 आएगा, यहाँ पे प्लस आंसर चाहिए, एक नेगेटिव ऑलरेडी है तो प्लस मल्टीप्लीकेशन में कैसे आएगा, सो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो हमको यहाँ पे माइनस साइन रखनी है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर।